Okay, we'll see the first question. 2.5. ठीक है. Parallel plate capacitance का फार्मूला you know epsilon naught A by D है ना, ये है ना. C naught is given 8 picofarad है ना, with air. Now there are two changes made here. One is medium is filled, other is gap is changed. The new capacitance C dash will be dielectric medium is 6, gap is half. तो 2 भी ऊपर आ जाएगा, 12 हो जाएगा. Epsilon naught A by D is this. So 12 into 8 is equal to 96 picofarad. I think everybody could have done this question. And Yes, two sir. changes were made in the medium was changed and gap was reduced to half. Medium dielectric constant 6 was given, gap is half. So ये भी 2 ऊपर आके 12 हो गया. 12 times of what it was in with the air gap, which was given 8. So 12 into 8 is 96 picofarad. This was the first question. I don't think any difficulty is there in this. Clear to everybody, or you want to ask in this? Shall I move on to the next? Okay. Then this was done yesterday itself. And this was the second question. Graph you have to draw. Na? So potential energy versus voltage. Some of you have done it like this. Will it be like this? Will it be like this? If we increase the voltage, energy is coming down. And No, sir. पहले वोल्टेज इतना है तो एनर्जी इतनी है. जब वोल्टेज इतना हो गया तो एनर्जी कम हो रही क्या? नहीं. यहाँ से देखो ग्राफ, ये रिलेशन है. If V increases, potential energy also increases. Both are increasing. This is the parabolic function we call it. Both are increasing means this graph is wrong है ना. दोनों इंक्रीज करते हुए बनाना है. ऐसे आएगा क्या? If V increasing, you also increasing. No. जब सिंगल पावर है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से. V directly proportional, U directly proportional to V square. V अगर डबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स. मतलब V को हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसके फास्ट रेट से इंक्रीज हो रही. तो ये भी रॉन्ग है. फास्ट रेट से इंक्रीज करना है तो ऐसे ग्राफ जाना चाहिए, ऐसे लाइक दिस, पैराबोलिक. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक ग्राफ. इधर भी आ सकता है. अगर तुमने पोटेंशियल नेगेटिव भी कर दिया, उसको दूसरी तरीके से भी चार्ज किया, कैपेसिटर के टर्मिनल चेंज करके. जिसको पहले प्लस किया था उसको माइनस के साथ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो. तो both way you can show it, but okay, this generally we are showing in one quadrant, it is okay, but both side it will do. ठीक, दोनों ठीक है. इसको इधर भी दिखा सकते हैं. Got it? So this was the other question. Now ये क्वेश्चन था सिंपल है ना. इसमें भी देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया था क्या मैंने? This one 10th question was given to you. Yes, sir. Yes, sir. तो सीरीज इन पैरेलल हम लोगों ने कर लिया है क्या? No, sir. हाँ, तो फिर कैसे कर सकते No, हैं? sir. ये बीच में कैसे आ गया? आई डोंट नो. चलो ठीक है. सीरीज एंड ये क्वेश्चन बाद में देना है मुझे, है ना. ओनली एनर्जी का. ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है. सॉरी, दिस इज टू बी डन लेटर ऑन. पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे फिर करेंगे इसको. ठीक है. नहीं नहीं, सिंगल कैपेसिटर है ना. ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो इसका आंसर कितना आया बोलो? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया? दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम. 1.5 into 10 to the power minus 8 joule. Yes, U sir. इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. C कितना है? 12 पिकोफैराड. 12 into 10 to the power minus 12. V is how much? 50. 50 into 50. What is the answer coming?
1.5 into 10 to the power -8. -8 joule. ठीक है. Okay. What is the answer of second part? 1.5 into 10 to the power -8. How? Why? How? So मैंने उसको पूरा जब इसका rule नहीं सॉल्व रहेगा कुछ? क्या बोलो सर? बोलो. सर Resistance बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस का रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि सर फॉर्मूले में रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है. क्वेश्चन में तो दिया ना रेजिस्टेंस. पर सर क्वेश्चन में दिया है, पर जो फॉर्मूले से निकालना है उसमें नहीं दिया, तो फिर दैट्स व्हाई. हाँ, तो क्या जस्टिफिकेशन क्या है? सेम आंसर यू आर टेलिंग. तो व्हाट इज द यस जस्टिफिकेशन? सर. व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? So exactly I What? don't know, What but is the total heat, total energy of the capacitor will convert into heat and light and radiation. ठीक है. If we use the current, if we try to find out the current, these are the variable conditions. So we may not get the accurate energy with the formula of current heat. I mean current electricity heat produce है ना, वहाँ पे भी फार्मूला होता है I square RT, बट यहाँ पे I नहीं है, टाइम भी नहीं है. तो कॉमन सेंस से we can say whatever the energy is there in the capacitor, all will be converted into heat, light and radiation. Therefore इसका आंसर भी सेम रहेगा, 1.5 into 10 to the power minus 8 joule. All the energy converts into heat and light. ठीक है. तो इसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फार्मूले फेल हो जाएंगे, बिकॉज हमें वेरिएबल कंडीशन में आएगा उससे भी, लेकिन उससे हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएंगी. ठीक है. कमिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट द एसआई यूनिट. द एसआई यूनिट ऑफ दिस इज व्हाट? तो यहाँ से निकालेंगे इसका जो डेफिनेशन है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का जूल होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है. तो जूल्स पर मीटर क्यूब एंड एनर्जी की डायमेंशन ये होती है, वॉल्यूम की एल क्यूब होती है. तो फाइनली ये डायमेंशन बचेगी. तो वी डोंट हैव टू यूज एप्सिलॉन नॉट, वी डोंट हैव टू यूज इलेक्ट्रिक फील्ड. एनर्जी एंड वॉल्यूम की डायमेंशन याद रखना इजी भी होती है ना. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से एनर्जी की निकाल सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू एम ए. मास एंड एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालना आसान होती है एज कंपेयर टू एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर. तो यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, ओके ये क्वेश्चन तो मैंने बोला था अपने आप कर लेना. यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, सपोज ये इनफाइनाइट शीट है यहाँ पर. ओके, वन ऑफ द क्वेश्चंस आई वांट टू गिव यू नाउ. चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो. ऑल ऑफ यू राइट द क्वेश्चन. लिखो. इफ एनर्जी डेंसिटी at any place due to uniform electric field is 100 joules per meter cube, what will be the energy contained in cube of side 1 centimeter? Cube of side 1 centimeter at that place. बोलो क्या आंसर आएगा? वॉल्यूम निकाल लेंगे एल क्यूब. कितना आएगा ये? 1 into 10 to the power minus 2 का क्यूब, 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब. ठीक है. तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 10 to the power -4. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी 100 दी है. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी निकालनी है, वहां पर कितनी एनर्जी है यू निकालना है. वॉल्यूम 10 to the power -6. तो यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी
10 to the power minus 4 joules. Got it? Yes sir. इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना होगा तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे वहां पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। पहले एनर्जी डेंसिटी निकालो इस फॉर्मूले से, फिर इसमें पुट करो। ये मैंने डायरेक्ट दे दिया तुम्हें, है ना, ठीक है। ये किसी भी उसके लिए हो सकता था क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए हो सकता था, मैग्नेटिक एनर्जी के लिए हो सकता था, इलास्टिक एनर्जी के लिए हो सकता था। गॉट इट? ठीक है, so things are under control. So we have seen energy half cv square, we have seen energy density half epsilon naught e square, dimensions लिखी हैं, उसके क्वेश्चंस लिखे हमने, है ना, और we have seen the capacitance of parallel plate capacitor epsilon naught a by d, है ना, और if we fill the medium with some other dielectric constant, तो it will be that many times if we fully fill it. स्लैब डाला तो उसका भी एक अलग फार्मूला होता है ना, स्लैब के लिए हमने अलग फार्मूला सीखा था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो वो तुम्हें याद नहीं रखना है एज फार एज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द ठीक है, मूविंग ऑन टू combination of capacitors. Suppose you have the capacitor of say 100 microfarad, but you need 10 microfarad capacitor. So which way you will combine them to get the lesser value? Or you need 1000 microfarad. So you should know their combination, which combination gives you more capacitance and which combination gives you lesser capacitance. So for that we are going to see the series combination similar to the resistances, and we have seen in 10th standard series combination of resistors. In that cases we are using the what is called Ohm's law, है ना। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज करेंगे, C is equal to Q by V, or Q is equal to CV वाले फार्मूला will help us out. So let us see now series combination में these are the two capacitors connected end to end. एक यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर end to end दूसरा कनेक्ट कर दिया, है ना। Then we are connected with the battery here. Whatever the charge goes, suppose इसने बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज भेजा यहाँ पर, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भेजा, ठीक है। तो क्या होगा, बीच में ये दो आइसोलेटेड प्लेट्स है कंडक्टर की, तो ये अगर प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन, ये बुक, ये ओके, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें क्या होगा कि व्हाट विल हैपन, ये क्वेश्चन सही, ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक का है, बट देयर इज वन एरर इन दिस, यू नो, इनर साइड में कब चार्जेस होते हैं यहाँ पे होंगे प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इधर इस तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इस वाली प्लेट से आएंगे, यहाँ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इधर से ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है। तो लाइक दिस फेसिंग प्लेट्स आर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से दे विल बी चार्ज इक्वली चार्ज। इस पे प्लस क्यू रहेगा, इस पे माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू, सीरीज में चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। तो कंसीडर टू कैपेसिटर्स C1 and C2 connected end to end as shown. Charge remains same on the series combination. जैसे resistance में current remains same in the series combination, है ना। Rate of flow of charge is also called current, है ना। तो similar onto that similar lines, charge will remain same. तो V भी the potential applied, ये वाला देखो, ये voltage apply किया हमने, potential या voltage बोलते हैं उसको, and potential difference or voltage or potential difference are same. In V1, V2 are the potential difference across each capacitor. V1 and V2, ठीक है। जी सर, हेलो सर, क्लास है। अच्छा, ठीक है ना सर।
क्लास, हाँ क्लास है सर, मैं बाद में करता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, आधे घंटे के बाद करता हूँ, ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, तो V विल बी डिवाइडेड, यहाँ इसको V1 मिलेगा, इस वाले को, इसको V2 मिलेगा, चार्जेस रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये वाले फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V और V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V1 विल बी Q बाई C1, Q सेम है, Q1 नहीं लिखेंगे, और V2 विल बी Q बाई C2, और सपोज हमने इन दोनों को सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया CS से, सो दैट कंडीशन रिमेन सेम, चार्ज सेम रहेगा, सेम वोल्टेज की बैटरी से सेम चार्ज रहना चाहिए, तो CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q बाई CS, है ना, क्योंकि हमें सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें, है ना, तो दोनों हटा के सिंगल कैपेसिटर CS लगा दिया, CS वैल्यू का, तो चार्जेस विल गेट कैंसल, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, है ना, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, CS is equal to C1 dot C2 upon C1 plus C2. This is only for 2 capacitors. If more capacitors are there, so you have to use this formula. 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. तो माइंड इट, ये 2 कैपेसिटर के लिए है, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करना, अदरवाइज इफ यू हैव द डाउट यू ऑलवेज यूज दिस फार्मूला, ठीक है, ये एलसीएम वाला मत यूज करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कल जो मैं पॉइंट बता रहा था यहाँ पे लिखा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q एंड नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, Q एक प्लेट पे प्लस Q है, दूसरे पे माइनस Q है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन सीरीज एंड इट इज लेस देन द लोएस्ट कैपेसिटेंस इन कॉम्बिनेशन, ये पे कैपेसिटेंस है, लोएस्ट कैपेसिटेंस, मतलब ये हुआ कि सपोज हमने 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, तो अपना जो नेट कैपेसिटेंस आएगा लेस देन द लोएस्ट, कौन सा लोएस्ट है, 1 है, उससे भी कम आएगा, वी कैन चेक इट, देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को हमने सीरीज में लगा दिया, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 1 into 2 upon 1 plus 2, 2 by 3, 0.67 आ जाएगा, है ना, 0.667, तो 1 है, देखो छोटा कौन सा था, 1 था, उससे भी कम आएगा, तो हमें ऑप्शन देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, अगर ऑप्शन आर गिवन या फिर अपने को आइडिया लग जाता है, बट यहाँ पे तुम लोग मिस्टेक क्या करते हो, यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे देखो मिस्टेक होती तुम लोग, यहाँ 1 by CS की जगह CS लिख देते हो, यहाँ पे, है ना, यहाँ भी CS लिख देते हो, CS इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by CS, C2 नहीं, 1 by CS है, लास्ट में तुम्हें रेसिप्रोकल करना है, राइट साइड में जो आता है, जब व्हेन वी यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, तो जो राइट साइड में आएगा उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इन्वर्ट कर देना, बिकॉज लेफ्ट हैंड में CS है, 1 by CS है, तो CS ऊपर जाना है, मतलब ये राइट साइड के टर्म्स इन्वर्ट हो जाएंगे, और जब एलसीएम लेके किया तब ठीक है, तब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ना, तो हमने एलसीएम लेके किया था, तो इसलिए हमें इन्वर्ट नहीं करना है, बट सपोज यू आर सॉल्विंग लाइक दिस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, CS इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, 1 प्लस 1 by 2, तो 3 by 2 आ गया, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि नहीं, 1 by CS होना है, तो 2 by 3 आएगा, तो बी केयरफुल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है तुम लोगों की, ठीक है, तो सबसे छोटे से छोटा आना चाहिए, तुम अगर तुम्हें लग रहा है, जैसे अभी हमने मिस्टेक की थी, नीचे 3 by 2 था, 3 by 2 तो मोर देन 1 था, है ना, सबसे छोटा कौन सा, 1 है, उससे भी कम आना चाहिए, तुम्हें खुद ही आंसर समझ में आ जाए, नहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है अपनी, ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो, n identical capacitors, each of capacitance C are connected in series, find the net capacitance, तो ये फार्मूला लग जाएगा 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, तो n by C हो जाएगा, फिर इन्वर्ट कर लेंगे तो ये C by n आ जाएगा, तो आइडेंटिकल जब कैपेसिटर होते हैं तो हम शॉर्टकट फार्मूला ये लगा लेते हैं, है ना, C is the capacitance of each capacitor, n is the total number of capacitors, जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, 9 पिकोफैरड है और कितने है, 3 है, तो C by n वाले फार्मूले से सीधा निकाल सकते हैं, C 9 है और कितने कैपेसिटर, 3 है, 3 पिकोफैरड, बट इसमें भी तुम लोग मिस्टेक कर देते हो ये शॉर्टकट वाले फार्मूले, इसलिए बेटर यूज द लॉन्ग कट फार्मूला,
1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. That is 3 by 9. C9 दिया. I mean 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9. 3 by 9. और इधर 1 by CS है. इन्वर्ट कर दो 9 by 3 हो जाएगा 3 पिकोफैरेड. ठीक है. ये जब हमें शॉर्टकट करना है, जब हमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करने हैं तब ऐसे करते जल्दी जल्दी. अदरवाइज यही फार्मूला सही है तुम्हारे लिए. ठीक है. और फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस. तो 120 वोल्ट है, सभी 9 पिकोफैरेड के, तो सभी में इक्वल आएगा. V1 V2 V3 सभी में इक्वल आ जाएंगे. तो V will be equal to V1 plus V2 plus V3. सिंस कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल तो सभी में पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा. तो 3 times of V1 हो जाएगा, तो V1 will be V by 3. 120 by 3 that is 40 वोल्ट. कॉमन सेंस से बोल सकते हो भैया 120 है और 9 के 3 है, तो सबको 40 मिल जाएगा. 40 plus 40 plus 40 120. तो आइडेंटिकल है. अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने. ठीक है, इसको मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व करता हूँ. चलो तुम लोग सॉल्व करो पहले, फिर मैं करता हूँ. चलो राइट द क्वेश्चन एंड लेट मी एक्सप्लेन यू, देन यू सॉल्व ऑन योर नोटबुक. देखो लेट मी एक्सप्लेन यू. तो 3 माइक्रोफैराड and 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर are connected in series to the 9 volt battery. Now find the net capacitance and potential difference across each capacitor. So let us see. I am giving you 1 minute. Solve it, then we will discuss. तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? CS equals to 2. तो मैं वो एलसीएम वो वाला 2 कैपेसिटर का फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ. 18 by 9 is equal to 2 माइक्रोफैराड. ठीक है. अभी चार्ज, अभी हमें वो भी निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. Sir, potential difference is of 12. 12 टोटल तो 9 है, वही तो डिवाइड होगा, थोड़ा एक को मिलेगा थोड़ा दूसरे को. 12 कैसे हो जाएगा? 6 किसके क्रॉस? 3 के क्रॉस. Yes. दोनों का निकालना है. V1 plus V2 निकालना है. जैसे ये यहाँ पे देखो, V1 is 18 and V1 is 18. तुम Yes, सुन नहीं sir. रहे हो बात है ना. अभी मैं तुम्हें कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट लगाया, तो 18 कहाँ से हो जाएगा? 9 ही तो डिवाइड होके दोनों को मिलेगा टोटल. 18 कहाँ से हो जाएगा? डू एक्यूरेट. जल्दी जल्दी करना जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्यूरेट करना इम्पोर्टेंट है. बाद में स्पीड बढ़ाओ. और किसी का आ रहा है क्या ऐसे? चलो 18 कैसे आया बताओ. लेट मी सी, हाउ डिड यू गेट 18? एक्सप्लेन करो. Yes, sir. बोलो कैसे 18 किया? सर मैंने जो 9 आया था नीचे उसको 2 से इंटू किया. क्यों? क्योंकि सर 2 रेजिस्टेंस है 6 और इसका 2 कैपेसिटर्स है, इस वजह से. तो इसको इंटू करने से क्या मिलता है? 18 मिला सर. क्यू क्या आया? मिलता है? हाँ क्यू आया. तो Q, क्यू बोलो Q. ना. 18 क्यू निकालेंगे अभी ना. ओके रुक जाओ फिर. Q is equal to CS into V. Q नेट है ना. CS कितना आया? 2. V9. Yes, तो sir. ये 18 माइक्रोकूलम आ जाएगा. माइक्रोफैराड तो माइक्रोकूलम है. तो 18 माइक्रोफैराड वोल्टेज थोड़ी हुआ, जो तो चार्ज हुआ. आगे बोलो. तो चार्ज निकाला ना. चार्ज हमें निकालना ही पड़ेगा वोल्टेज फिर निकालने. उसके बाद सेकंड का मेरा चार्ज आया 6. अभी सीरीज में हमने डिस्कस किया. अच्छा कैसे आया चलो बताओ पहले. बताओ सर कैसे, क्या 18 किया? 18 अब गलत है क्या सर? नहीं क्या किया ये बताओ. तुम्हारा 6 जो है वो बताओ ना. क्या है 6? क्या आया? चार्ज आया कि क्या आया? चार्ज. क्यों कैसे कैसे? सर? क्यू बाय सी किया, ये किया तो 18 बाय ये आया 3, तो फिर उससे मेरा आंसर आया 6. एक मिनट 6 कैसे आया वो बताओ. क्या सर किया वो 6 के? फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है वो 3 है उसका, तो फिर हाँ. मैंने उसको 18 बाय 3 किया तो वो 6 भी आया. फार्मूला कौन सा है?
फार्मूला कौन सा? Q by C. Q by C. Yes sir. Q Q is by equal to C CV. by. V निकालने के लिए हाँ Q by sir. C किया तो Q Yes sir. 18 और C कितना? हाँ. C is equals to sir 3 फर्स्ट वाला निकालने के लिए. तो ये तो चार्ज 6 थोड़ी है, ये तो वोल्टेज आ रहा है ना. तुम क्या क्या बार बोल Yes रहे sir. हो? ये वोल्टेज आया ना, ये चार्ज थोड़ी हुआ, ये तो वोल्टेज हुआ. Sorry sir. हाँ वोल्टेज. ध्यान से, इसीलिए मैं रिपीट पूछता था क्या है. चलो ठीक है, अभी चार्ज मिल गया. अभी देखो सही है, ठीक है. तो चार्ज मिल गया, तो अभी हमने चार्ज Q इज इक्वल टू C1 V1. चार्ज तो सेम रहने वाला है सभी कैपेसिटर पे, है ना. तो पहले वाले पे भी Q रहने वाला, दूसरे पे. तो अभी हमें C1 V1 से V1 निकालना है, तो Q इज इक्वल टू C1 V1 लिख दिया. तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1. तो चार्ज 18 माइक्रोकूलम, C1 कितना है 3 माइक्रो फैराड. तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, C बाई V पोटेंशियल, ये अपना V आ जाएगा 6 वोल्ट. तो V1 6, तो V2 कैसे, टोटल 9 है, 9 में से 6 माइनस कर दो, 3 वोल्ट उसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को मिल जाएगा. गॉट इट. तो V1 6 वोल्ट एंड V2 9. ठीक है. तो ये हमें बेसिक पे जाके सॉल्व करने हैं बिल्कुल ऐसे. तो पहले क्या किया हमने, देखो पहले हमने क्या किया, नेट चार्ज निकाल लिया. फिर हमें पता है चार्ज सीरीज में सेम रहता है, तो हमने फिर वो Q इज इक्वल टू CV वाला फार्मूला इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए लगा दिया. Q इज इक्वल टू C1 V1, उससे V1 मिल गया. और Q इज इक्वल टू C2 V2, उससे V2 मिल जाएगा. या फिर हमने 9 में से 6 माइनस कर दिया, बाकी उसको सेकंड कैपेसिटर को मिलेगा. गॉट इट. नोट कर लो फिर. ठीक है. Yes sir. V2 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, Q बाई C2 से भी निकाल सकते थे, उससे भी उतना ही आएगा, या फिर माइनस करके निकाल लो. गॉट इट. तो सभी को समझ में आ रहा है? सब लोग हो कि नहीं? आर यू Yes sir. देयर? बहुत कम स्टूडेंट है, क्यों इतनी? अभी जो नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको अभी डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं आगे से. हर्ष इज देयर, दिशा इज देयर. ओके, लेट मी टेक द टाइम वेस्टेज कराते हैं. एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, अभी उसको परमानेंटली नमन है. नमन, आर यू देयर? सर उसकी शायद दूसरी कोई क्लास थी अभी आज के लिए, हाँ, इसलिए तो वो अरे तो फिर ऐसे ही है ना. अभी उनको सबसे पहले तो फीस जमा करो और उसके बाद ज्वाइन करो. तुम लोगों ने फीस क्यों नहीं दी अभी तक? मैम ने बोला है तुम लोगों को? किसने किसने अभी? ओनली वेरी फ्यू हैव गिवन. लेट मी आस्क यू. सीरियसनेस नहीं है इसीलिए फीस नहीं है, इसलिए सीरियस नहीं. हर्ष, तुमने दी है फीस? कल जमा करो. Yes, अकाउंट sir. नंबर दिया गया था. खुशी, आई थिंक मैंने खुशी फीस की आ पे गई, कर दी सर. खुशी की आ गई, दिशा की आ गई. हाँ, हिमांश, अपना भूषण, व्हाट अबाउट योर फीस? सर दूंगा थोड़े टाइम में. थोड़ा टाइम नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी. तुमने 11th का भी पढ़ा था, है ना, उसके बाद अभी 12th का भी है. क्यों थोड़ा टाइम? भाई थोड़ा टाइम चाहिए. पहले तो इनिशियल इंस्टॉलमेंट तो सबसे पहले देना पड़ता है. हाँ देता हूँ. और कौन है? किसको मैंने बोला था? तुम्हारा कीर्तन तो तुम्हारा वो बाद में तुम मैम को देना. सारे आल्सो गिव टू मैम. एंड शिवानी, आई थिंक यू पेड. शिवानी मैम को दिया क्या? मलिक मैम को. ओके, एक का बताया था मैम ने. और कौन कौन एब्सेंट है पहले ये बताओ मुझे. हम हेमांग नहीं है, नमन नहीं है, और कौन नहीं इसमें से? ठीक है, ये दोनों सीरियस नहीं है, इनके दोनों के नाम निकाल देता हूँ मैं. चलो, दूसरी ट्यूशन है तो फिर इधर इनको बोलो, फिर फायदा नहीं है फिर ऐसे. दो ट्यूशन तो, अपनी ट्यूशन तो बहुत दिनों से चल रही ना. ठीक है, किसी को डाउट है? हर्ष क्लियर? Yes, भूषण sir. तुम्हें समझ में आ रहा है? और कौन था वो? आर्यन नहीं Yes, है? sir. आर्यन को क्या हुआ? आर्यन, यू आर देयर? व्हाट हैपेंड टू आर्यन? तो वो स्टार्टिंग में था, फिर डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा, तो मतलब नहीं है ये सब ऐसे बीच बीच में छोड़ के जाने का. चलो, ये हो गया क्वेश्चन. अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, समवट सिमिलर है. ये एक्चुअली क्या होता है, ये शॉर्टकट फार्मूला होता है. अगर हमने ऊपर वाले को शॉर्टकट फार्मूले से करना है तो ये फार्मूला लर्न करना है, बट इतने सारे फार्मूले लर्न नहीं कर सकते. देखो ये क्वेश्चन क्या है, refer the diagram and find the V1 and V2 in terms of C1 and C2 and V. तो ऊपर जैसे क्वेश्चन है, पहले हम CS निकाल लेंगे,
नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे C1 C2, फिर वही Q इज इक्वल टू चार्ज निकाल लेंगे टोटल सर्किट में, फिर अपना वही इंडिविजुअल जैसे ऊपर किया V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, इसमें C1 C1 कैंसिल हो गया और C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इज C1 अपॉन C1 प्लस, तो देखो जब V1 है तो यहाँ पर C2 आ रहा है, बाकी टर्म सेम है। देखो जब V2 है तो C1 आ रहा है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। जिस V1 में C2 आएगा, C2 इंटू V अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, नीचे V भी टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इंटू C2, V1 में C2 आ रहा है और V2 में C1 आ रहा है ना। और ये टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस तो रहेंगे दोनों में, यहाँ भी देखो। तो बट ये सब फार्मूले जनरली भूल जाते, तो ऊपर जैसे हमने किया ना, ऊपर वाले चेक कर सकते हैं। देखो अभी हमें V1 निकालना था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। V1 निकालना था, C2 कितना है, सेकंड कैपेसिटर कितना था, पहला वाला कितना है 3 है, दूसरा 6 है, तो 6 इंटू वोल्टेज कितना था 9 अपॉन 9 कैंसिल हो गया, V1 6 आ गया, यहाँ भी देखो 6 आ गया, 6 आया था। तो ये फार्मूले याद है तो ठीक है ना, कंपटीशन में ज्यादा काम आते, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही करो जैसे ये किया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। अभी पैरेलल देखें हम लोग, समझ में गया सीरीज में कुछ प्रॉब्लम है। देखो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस CS इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, और उसके बाद जो है चार्जेस निकालना है, तो Q नेट इज इक्वल टू C नेट इंटू V, टोटल कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है तो Q अपॉन C1, चार्ज तो सेम रहने वाला सभी पर, और Q अपॉन C2 से V2 आ जाएगा, है ना। तो ये इतने स्टेप मिनिमम करने ही है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में तुम्हारे दोनों कैपेसिटेंस के, देखो यहाँ से ये दो कैपेसिटेंस ले लो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे दोनों के एंड एक साथ लगा दो यहाँ पर इस तरह से, फिर उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। तो इसमें क्या रहता है, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा हमने रेक्टेंगुलर दिखाया। तो पैरेलल में बोथ द टर्मिनल, जैसे कैपेसिटर लिया हमने, दो कैपेसिटर लिए, दोनों में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को ज्वाइन कर दो, दूसरे टर्मिनल को आपस में ज्वाइन कर लो, फिर उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम, देखो इसको भी ऊपर वाले को, जो यहाँ पर V वोल्ट रहेगा, ऊपर वाले के पास भी V वोल्ट रहेगा, बैटरी नीचे V वोल्ट की है, दोनों को पूरा पूरा वोल्टेज मिल रहा है। डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं सारे, है ना, सारे जो है सबको हमें 220 वोल्ट मिलता है घर में, है ना। तो यहाँ भी हमने कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं, दोनों कैपेसिटर्स को V वोल्ट मिलेगा, अगर दोनों हमने 220 वोल्ट में लगाए हुए, दोनों को 220 वोल्ट मिलेगा, है ना, पैरेलल में। तो ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ से Q गया, ऊपर वाले में Q1, नीचे वाले में Q2, है ना। तो चार्ज दोनों में ऐड हो गया, Q1 प्लस Q2, ठीक है। और यहाँ से देखो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q1 क्या होगा C1V, Q2 क्या होगा C2V, V सेम है दोनों में, है ना। दोनों देखो डायरेक्ट, इसको ये जो कैपेसिटर है C1 वाला, इसको V पूरा मिल रहा है, तो चार्ज निकालने के लिए C1 इंटू V, दूसरे वाले को भी V पूरा मिल रहा है, C2 इंटू V, है ना। तो Q1 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से यहाँ पे, और Q2 की वैल्यू यहाँ, तो C1V प्लस C2V। अब इन दोनों को हमने सिंगल कैपेसिटर CP से रिप्लेस कर दिया, तो उसका CP और उसको भी पूरा वोल्ट V मिलेगा, तो V कैंसिल हो जाएगा, CP विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। C कैपेसिटर है n, तो C प्लस C डायरेक्ट, ये सिंपल फार्मूला है, वन ऑफ दीजिए, तो NC हो जाएगा, CP विल बी NC, है ना। और इसमें हमें चार्ज निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, C1 इंटू V और C2 इंटू V, डायरेक्ट चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसमें कैपेसिटेंस का फार्मूला भी बहुत आसान है, सारे ऐड हो जाएंगे, एंड चार्ज निकालना है तो C1 इंटू V पूरा पूरा वोल्टेज सब कैपेसिटेंस को मिलता है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऊपर वाले में चार्ज निकालना था तो हमने नेट कैपेसिटेंस निकाला है ना, उसके बाद चार्ज निकाल पाए। वोल्टेज पोटेंशियल निकालना है तो फिर हमने वो डिवाइड किया था Q बाई, बट ये दोनों काम आसान है,
नेट कैपेसिटेंस भी निकालना आसान है, चार्जेस निकालना भी आसान है ना। तो देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 2, 3 and 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? 2, 3 and 4 आर इन पैरेलल, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 + 4 9 पिकोफैराड। चार्जेस निकालने हैं तो C1 × V, सबको पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा 100 वोल्ट, C1 × V, C1 2 है और पिको में, इसलिए मैंने यहाँ पे -12 से मल्टीप्लाई किया और 100 वोल्ट। देखो ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे जगह कम है तो ये तुम्हारा 100 वोल्ट है, पहला कैपेसिटर उसको भी पूरा 100 मिल रहा है, दूसरा कैपेसिटर उसको भी 100 मिल रहा है, तीसरा उसको भी 100 मिल रहा है। तो अपना चार्ज निकाल सकते हैं Q1 = C1 × V। Q2 निकालेंगे तो ये C1 C2, उसको भी 100 पूरा मिल रहा है यहाँ से, देखो C2 × V, C2 कितना है? 3 × 10⁻12, V 100 है तो 3 × 10⁻10। ऐसे ही Q3 निकाल लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क में देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दोनों। तो ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, ये होमवर्क में सॉल्व करके भेजो। बोर्ड में उन्होंने पूछा था 15 करके। तो देखो ये तुम्हारे कैपेसिटेंस दिख रहे हैं तुम्हें, ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है, और ये C4 है। कौन से सीरीज में और पैरेलल में है? इसमें सीरीज में दिख रहे हैं कुछ तुम्हें? देखो यहाँ से जो चार्ज जाएगा ऐसा, C4 are series. C1 C1 में तो C2 कुछ और, C3 C1 में तो कुछ और चार्ज जाएगा, C2 में तो कुछ और चार्ज तो डिवाइड हो गया, तो कैसे सीरीज में होंगे ये? चार्ज डिवाइड नहीं होना चाहिए ना। कौन से सीरीज में बोलो? किसी ने बोला C1 C2 C3, कैसे सीरीज में होंगे वो? यहाँ से जो चार्ज चला वो इस पे भी जाएगा, उस पे भी जाएगा, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे, तीनों पे सेम रहने वाला है, तो ये तीनों सीरीज में है। इसका जो नेट निकलेगा ऐसे, वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, C4 के साथ, समझा? ये तीनों का पहले नेट निकालो फार्मूला लगा के सीरीज का, फिर उसको सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो, फिर तुम देखोगे ये दोनों C4 और ये C नेट आपस में पैरेलल में है, C4 और C नेट, फिर नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इंडिविजुअल चार्ज निकालना है